میرے دوستوں، عزیزوں، جیسس لنک کے سننے والوں، الفریڈ گیل آلبنی نیو یارک سے آج کی سچی اور اچھی باتوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ آج کا شو میرا ہے 351 اور 351 اور شو کا ٹاپک ہے انا اور میں۔ شو کا ٹاپک ہے انا اور میں، اور سب سے پہلے تلاوت کلام پاک آج کا خوبصورت حوالہ لیا ہے اعمال، اس کا 3 باب 19 سے 21 یاد تک پڑھوں گا۔ اعمال، رسولوں کے اعمال، اس کا 3 باب 19 سے 21 یاد تک پڑھوں گا، اور یوں مرقوم ہے، بس توبہ کرو، بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں۔ بس توبہ کرو، رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے، اور اس طرح خداوند کے حضور سے خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے، اور وہ اس مسیح کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا ہے، یعنی یسوع کو بھیجے۔ ضرور ہے کہ آسمان میں اس وقت تک رہے جب تک کہ وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں جن کا ذکر خدا نے اپنے نبیوں کی زبانی کیا ہے، جو دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند اپنی بڑی برکت بخشے، اور جیسے شروع میں لکھا ہے کہ بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں۔ بہت خوبصورت آج کا کلام ہمیں واقعی ادھر ادھر کی باتیں، اپنی انا کہ جو کہ ہم خدا کے سامنے بھی اپنی انا کو اور میں کو رکھے ہوئے ہیں، اور جب تک اس انا اور میں کو نہیں ختم کریں گے ہم خدا کے حضور بھی اتنے مقبول نہیں ہوں گے، اور ہماری جو غلطیاں گناہ ہیں جو ہم اس کے حضور کرتے ہیں وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، کیونکہ لکھا ہے توبہ کرو، توبہ کرو، رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں۔ ہمیں ہر وقت خدا کے حضور حاضر ہونا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور ہر طرح سے اس کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے ہمیں اس کے سامنے جانا چاہیے تاکہ وہ ہماری غلطیوں گناہوں کو معاف کر سکے۔ تو میں اپنا شو شروع کرتا ہوں جس کا ٹاپک ہے انا اور میں۔ تو شہزاد گل صاحب کا ایک آخری شعر، بہت انہوں نے غزل لکھی لیکن وہ تو میں بعد میں پڑھوں گا، لیکن ان کا آخری شعر کچھ اس طرح ہے: گرا کر بت اناؤں کے، جو میرا ٹاپک ہے، گرا کر بت اناؤں کے، انا کو توڑنا سیکھو، گرا کر بت اناؤں کے، انا کو توڑنا سیکھو، تلک ٹوٹ جائے تو پھر اسے جوڑنا سیکھو۔ اگر ہمارا کسی بھی حوالے سے تعلق رشتہ داروں، عزیزوں، بھائیوں سے، دوستوں سے تعلق ٹوٹتا ہے، تو اگر ہم کوشش کریں تعلق ٹوٹ جائے تو پھر وہ تعلق جڑ سکتا ہے۔ اپنی انا کو، اپنی میں کو مار کر ہم اس تعلق کو جوڑ سکتے ہیں، اور خاص طور پر جو کہ اکثر ہم اپنا تعلق خداوند باپ سے توڑ لیتے ہیں، اس کو بھی ہمیں جوڑنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے جوڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے بشیر خزاں، اللہ کی پکڑ، انسان کی اکڑ میں، اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے۔ الفریڈ الیگزینڈر یوکے سے، کیونکہ اللہ جب پکڑتا ہے تو پھر
वो किसी अकड़ को नहीं देखता। एक झटके से, एक मिनट में, बल्कि एक सेकंड में वो सारी अना को, वो सारी मैं को वो खत्म कर देता है। उसके बाद सारी अल्फ्रेड अलेक्जेंडर की दूसरी पोस्ट, जिस तरह लींबू का, नींबू जिसे कहते हैं, जिस तरह लींबू का एक कतरा भी बहुत सारे खालिस दूध को खराब कर देता है, इसी तरह इंसान की अना भी, इसी तरह इंसान की अना भी बहुत सारे अच्छे ताल्लुकात को बर्बाद कर देती है। और बिल्कुल बहुत सच्ची और अच्छी बात है कि जिस तरह एक नींबू आप बहुत बड़े से बड़े जो दूध कड़ा है उसमें भी डाल दे तो एक दो कतरे तो वो दूध को बर्बाद कर देता है। और यही जो इस पोस्ट में बात समझाई गई है कि इसी तरह जो हमारी अना, जो हमारी अकड़ है, वो सारे ताल्लुकात, वो सारी रिश्तेदारियां, वो सारी दोस्तियां जो है वो खत्म हो जाती है सिर्फ एक अना की वजह से, हमारी अकड़ की वजह से, हमारी नय की वजह से। उसके बाद जोसेफिन क्रिस्टियन, ये भी यूएसए कैलिफोर्निया में है, उन्होंने बहुत अच्छे 3 शेर लिखे हैं, उनकी 2 पोस्टें हैं। वो जो एक नुक्ता नूर था, वो जो एक नुक्ता नूर था, मेरी अकल में शऊर था, वो जो नुक्ता नूर जो मेरी अकल का जिक्र मैं समझता हूँ कि नूर को अकल कर हवाले से दिया गया कि वो एक नुक्ता नूर था। मेरी अकल जो थी, मेरी अकल मेरा शऊर था, वो नूर जो अकल के तौर पर मेरे ज़हन, दिमाग में, दिल में डाला गया, वो एक शऊर था, बातों को समझने वाले, अना को, मैं को जानने वाला वो शऊर था। जो समझ लिया तो सनम बना, जो समझ लिया तो सनम बना, ना समझ सके तो खुदा हुआ। जिसको हमने समझ लिया वो सनम बना, तो जिसको ना समझा वो खुदा बन गया। वो मैं में आ गया, अना में आ गया, वो अपने आप को खुदा समझने लग गया। लहजा ऐसा के मुतमय्यन कर दे, बिल्कुल ऐसा लहजा, ऐसा खूबसूरत लहजा, नरम लहजा, खूबसूरती से, नरमी से, वो लहजा ऐसा के मुतमय्यन कर दे। कितने सच हैं, झूठ भी उसके, वो कितने सच हैं, वो कितना सच बोलता है और सारा ही झूठ है। तो वो यही बात है कि कितने सच हैं, झूठ भी उसके, जो सच भी है वो भी उसका झूठ है। क्योंकि जब भी हम कोई बातें करते हैं, दोस्तों से वादे करते हैं, लेकिन वो सारे झूठे हो सकते हैं। मैं का नशा तो एक रात में उतर जाता है, ये आखिरी शेर बहुत खूबसूरत है। मैं का नशा तो एक रात में उतर जाता है, मगर मैं का नशा, मैं जिसे मैं कहते कि मैं अकड़ कर मैं, मगर मैं का नशा जिंदगी भर नहीं उतरता। क्योंकि मैं जो शराब या शराबी, मैं भी, कोई भी नशा करते हो, वो तो रात को आप पीते हो, सो जाते हो नशे में, सुबह और नशा उतर जाता। लेकिन जब उस नशे से उठते हो तो फिर वही अकड़, वही मैं वाली बात है। कौन है, इसलिए इस खूबसूरत शेर है कि मैं का नशा तो एक रात में उतर जाता है, मगर मैं का नशा जो मैं है, जो अना है, वो सारी जिंदगी वो नशा नहीं उतरता। उसके बाद जोसेफिन क्रिस्टीना की एक और बात है, पोस्ट, अगर आप ये समझते हैं कि दुनिया का बेहतरीन मजहब या अकीदा आपका है, तो फिर बेहतरीन अमल करके दिखाना भी आपके जिम्मेदारी है। हम, अगर मैं अपनी मिसाल या अपने कौम की मिसाल, अपनी मसीही कौम की मिसाल दूं, तो हम अपना अकीदा दुनिया से नंबर 1 समझते हैं। हर कौम समझती है, मुस्लिम भाई वो समझते हैं कि हमारा अकीदा है, हम जन्नत के मालिक हैं, हम फरदौस के मालिक हैं। तो इसका मतलब है कि वो अपना अकीदा
अपने आप को दुनिया का नंबर 1 समझते हैं, और इसी तरह हम मसीह लोग समझते हैं कि हमारा अकीदा, क्योंकि दोनों ही कौमें खुदा को मानती हैं, ना किसी बुतों को, ना किसी इधर उधर की चीज को सजदा करते, सिर्फ खुदा के सामने सजदा करते हैं। लेकिन सिर्फ दोनों को मुंह से करती, अमल से नहीं करती। और यही लिखा है कि क्यों देखते हो सारी अकीदा आपका, तो फिर बेहतरीन अमल करके दिखाओ भी कि आप जिम्मेदारी है। अगर आप बेहतरीन अमल करके दिखाने में नाकाम हैं तो अपने अकीदे का प्रचार छोड़ दें। हम उस पर अमल नहीं कर सकते, दिखावे के लिए सब कुछ कर रहे हैं या मुंह से सिर्फ कर रहे हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं, तो फिर हमें उस अकीदे को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब हम अमली तौर पर नहीं, जुबानी कलामी रोज हम इसका प्रचार करते हैं, तो अगर हम उसको, उस अकीदे को सच्चे तरीके से खुद नहीं मानते, उस पर खुद अमल नहीं करते, तो हमें उसका प्रचार करना भी छोड़ देना चाहिए। जो अपनी आंखों से देखते हो, इसके मुताबिक लोगों से बर्ताव भी करो, और ना सुनी सुनाई बातों पर यकीन करो। और यही जो बातें हैं कि हम सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं, लेकिन हम इस पाक कलाम की बातों पर यकीन नहीं करते, जो बहुत सच्ची और अच्छी और खुदा की बातें, उसके बेटे की बातें, उसकी हमदो सताइश की बातें, हम लोगों की बातों पर तो अमल कर जाते हैं, लेकिन उस खुदाए बात की जो खालिक और मालिक है, हम उसकी बातों पर ध्यान नहीं जाते। और इसका मतलब है कि हम अपने अकीदे पर अमल नहीं करते, इसलिए हमें उसका प्रचार भी, अगर हम उसका प्रचार करें तो सबसे पहले हमें उसका नमूना देना चाहिए। अगर आप एक गुड़ खा रहे हैं तो आप किस तरह दूसरों को मना कर सकते कि गुड़ ना खाएं? जब तक आप गुड़ खाना नहीं छोड़ेंगे, मीठा खाना नहीं छोड़ेंगे या मीठी बातें करेंगे, तो फिर आपका अकीदे का प्रचार होगा, और मीठी, सच्ची और अच्छी बातों का लोगों के सामने करेंगे तो फिर वो यकीन करेंगे और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बातें करें, तो जरूर इसका मतलब है कि आप अपने अकीदे पर अमल करते हैं। दूसरा, उसके बाद है प्रवीण शाकर, गजल है उनकी। प्रवीण शाकर तो नामवर शायर है। मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, मलाल है, परेशानी तो है, लेकिन इतनी परेशानी तो थोड़ी है। ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। ये जो आंख लाल हो रही है वो रोने की वजह से, वो परेशानी की वजह से। हालांकि परेशानी के बाद रोना जो मलाल है, जो भी मुश्किलें, रोना तो आता है, लेकिन प्रवीण शाकर कह रही है जो मेरी आंखें लाल है ये परेशानी सी है, रोने से नहीं। बस अपने वास्ते ही फिक्रमंद हैं सब लोग। बहुत खूबसूरत शेर। बस अपने वास्ते ही हैं फिक्रमंद सब लोग, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। क्योंकि हर कोई तो अपनी अना में, हर कोई अपनी मैं में जी रहा है, तो उसको किसी को ख्याल थोड़ी है। वो तो अपने आप में जी रहा है, अपने लिए जी रहा है, अपने आपके लिए जो कुछ भी कर रहा है वो अपनी जात के लिए। अगर वो झूठा है तब भी अपनी जात के लिए, अगर सच्चा है तो अपनी जात के लिए है। अगर सच्चा वाकई सच्चा होगा तो फिर तो उसमें कुछ सच्चाई की अच्छी और सच्ची बातें होंगी, लेकिन यहाँ किसी का ख्याल थोड़ी है। जबकि हम अपनी अना में, मैं में जी रहे हैं, तो फिर हम किसी का ख्याल नहीं कर सकते, फिर सिर्फ और सिर्फ अपनी जात का ख्याल कर सकते हैं। परों को काट दिया उड़ने से पहले, परों को काट दिया उड़ने से पहले, ये खौफे हिजर है, शौके वसाल थोड़ी है। ये तो खौफ हिजर का खौफ है, जुदाई का खौफ है। वसाल का, मुलाकात का तो
खौफ नहीं, वो तो खुशी होगी जब वसाल का वक्त आएगा कि वाकई वादा पूरा हो गया, वसाल आ गया, उसने वादा पूरा कर दिया, मुलाकात होगी, तो फिर तो खौफ नहीं होगा। मेरा मजा तो तब है कर रहा, मजा तो तब है कि हार के भी हंसते रहो। ये बात है कि अगर हम वाकई हार के हंसते खुश रहें, चलो इस बार हार गए, पूरी कोशिश करें, आपके पास फिर 6 महीने बाद, साल बाद, या जब भी वक्त मिलेगा, तो आप जब हार को हंसकर, हंसी के साथ उसको कबूल करते हो, तो फिर वक्त आए तो आप कितना जोर लगाओ कि उस हार को जीत में बदल दो। और जो पर काट गए दिए आपके, कि जिसके पर काट दिए गए, ये उड़ ना सके, ये जीत ना सके, लेकिन फिर भी अगर खुदा पर आपका ईमान है, वो आपके पर भी वापस आ जाएंगे। कोशिश भी जारी रखो तो जीत भी मिल जाएगी। बहुत खूबसूरत। मजा तो तब है कि हार के भी हंसते रहो, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है कि हर वक्त हर आदमी, अगर 10 आदमी भाग रहे हैं तो 10 ही तो नहीं जीतेंगे, जीतेगा तो एक आदमी, एक दो जो पहले नंबर या 2 नंबर पर रहेंगे, 3 नंबर पर भी ठीक है। तो हर आदमी जीतता नहीं, लेकिन हर आदमी ये तो कोशिश कर सकता है कि मैं दोबारा जब भागू तो मैं फिर आगे नंबर 1 जाऊं। उसके बाद लगानी पड़ती है डुबकी, उबरने से पहले गरूब होने का मतलब जवाल थोड़ी है। बिल्कुल सही बात है। हमें जब हम लगानी पड़ती है डुबकी उबरने से पहले, जब तक हम हारेंगे नहीं, बार बार हारेंगे नहीं, तो फिर हमारी जीत का कोई, जीत के लिए हम कुछ नहीं कर। अगर हम उस हार को वाकई जाने कि इस हार को मैंने जीत में बदलना है, जो डुबकी की है, जो कोशिश की आपने, उससे पीछे ना हटे, क्योंकि अगर आप दिल तोड़ देंगे तो इसका मतलब है कि आपने अपनी हार मान ली। लेकिन अगर हम उस हार को इस तरह करें कि फिर अगली बार हम जीते, कोशिश करते रहें, गरूब होने का मतलब जवाल थोड़ी है, हार जाने का मतलब ये थोड़ी कि हम हमेशा हमेशा के लिए हार गए। तो इसलिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए। मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। उसके बाद बेहतरीन उर्दू शायरी, इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त कौन है? अल्लाह, खुदा पाक, खालिक और मालिक, वो सबसे बेहतरीन दोस्त है कि बहुत जल्दी मान जाता है। बिल्कुल, चूंकि वो बाप है, अजली और अब्दी बाप है, तो वो ज़ाहिर है हम दुनियावी तौर पर कितने भी गलत काम करते हैं तो माँ बाप कुछ भी हो, हम उनसे जाकर पैरों में पड़ जाते हैं, मिन्नतें कर लेते हैं, तो चूंकि वो माँ बाप है, नरम हो जाते हैं। इसी तरह हम जितने मर्जी गुनाह करते हैं, हम बहुत एक इंसानी फितरत है कि करते हैं, तो अगर हम अपने बाप, हकीकी बाप के पास जाते हैं तो वो मान जाता है। पुरानी बातें याद नहीं करवाता, जो हमारी पुरानी बातें, जो हमारी पुरानी गलतियां, जो हमारे पुराने गुनाह हैं, वो याद नहीं कराता, कभी मायूस नहीं लौटाता अपने दर से। वो कभी भी हम उसके दर पर जाएं, उसके घर में जाएं, उसको सजदा करें, उसके सामने इतराफ करें, तौबा करें, सच्ची तौबा करें, तो वो मान जाता है, हमें मायूस नहीं होने देता, और कुछ ना कुछ हम उसके दर से लेकर ही आते हैं। उसके बाद आदमी, इज्जत और जिल्लत का मामला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब और इज्जत के हाथ में होता है। बिल्कुल, रोज जवाल जिल्लत और इज्जत उस खुदा पाक के वजह से। तो जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे करा दे, क्योंकि ये उसके हाथ में।
क्योंकि वो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है। वो आसमान की बुलंदियों से लेकर जमीन की इंतहा गहराइयों तक जानता कि क्या रहा है। तो हम तो एक छोटी सी चीज है, छोटी सी चीज है। वो हमारे दिलों को, गुर्दों को, हमारे दिलों को, राजों को जानने वाला है। तो इसलिए हमने जो कुछ भी हम हैं उसकी मेहरबानी से, उसकी पिदराना मोहब्बत और शफकत की वजह से वो जिसको चाहे इज्जत और बुलंदी अता फरमाता है। और इसकी सारी दुनिया मिलकर रसवा नहीं कर सकती, और उसको सारी दुनिया मिलकर रसवा नहीं कर सकती है। दूसरों के लिए कुआं खोदने खुद ही इसके कुएं में गिर जाते हैं। जो दूसरे के लिए कुआं खोदते हैं, जो दूसरे के लिए रोड़े अटकवाते हैं या रास्ते बंद करते हैं, ये सबसे बाइबल मुकद्दस की बात है कि जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है वो उसमें खुद ही गिरता है। जो दूसरों के लिए बुराई सोचता है वो बुराई उसके सामने ही आ जाती। और ये आप जिंदगी में देखते हैं कितने लोग हैं जो हमारे खिलाफ या हमारे लिए बुराइयां करते, लेकिन उस बुराई में या उस जाल में, उस खिड़की में खुद ही फंस जाते हैं। तो इस कुएं में गिरते हैं और किसी को नीचा दिखाने वाले खुद कई पुश्तों और जलालत का शिकार हो जाते हैं। और ये कौन करते हैं? जिनमें बड़ी अना, जिनमें बड़ी अकड़ होती कि मैं जो कुछ करूंगा मैं वो ठीक करूंगा, मैं किसी के लिए घड़ा खोदूंगा वो गिर जाएगा। लेकिन वो गलत सोचता है, वो अपनी अना और मैं की वजह से खुद ही उसमें गिरता है। वो खुदा को भूल जाता है कि जिसके हाथ में जिल्लत और रसवाई और अरूज और जवाल है, इसीलिए वो खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। इसलिए हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए इंसान होते हुए, क्योंकि इंसान सब बराबर है। खुदा ने सबको बराबर, किसी काले को, गोरे को, किसी पर कोई फौकियत हासिल नहीं, क्योंकि हम सब बराबर है। इंसान है, सब में ज़हन है, सब में जान है, सब में दिल है। खुदा ने सबको बराबर बनाया, इसलिए हमें किसी की बुराई का नहीं सोचना चाहिए। उसके बाद उर्दू मेरी दोस्त, इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दौर जरूर आता है जब वो अपने आप को अक्ल कुल और सबको बेवकूफ समझने लगता है। ये बात है, और बिल्कुल ये सच्ची बात है कि इंसान जिसको खुदा रूज देता फिर वो खुद खुदा बन जाता है। वो अपने आप को दुनिया का अकल तरीन आदमी समझता है और दूसरों को बेवकूफ आदमी समझता है। ये कौन करते हैं? जिनको खुदा बहुत कुछ दे देता है, और फिर जब वो लेने लगता है तो फिर उनको सब कुछ अपनी अना और मैं याद आती कि मैं तो बहुत गलत काम करता रहा, मैं दूसरों को बेवकूफ समझता रहा, हालांकि मैं खुद भी बेवकूफ था। अगर उस रूज को अक्लमंदी से, ध्यान से, खुदा को याद करके वो सारे काम करता तो शायद उसको किसी कुएं में ना गिरना पड़ता। यह अलग बात है कि बहुत से लोग सारी उम्र इस दौर में जितने रिश्ते हैं और इससे बाहर नहीं निकल पाते। अकल से दौलत हासिल होती है या दौलत से अकल, इसका तो सही इल्म नहीं। अलबत्ता ये जरूर है, ये बात देखें, अलबत्ता ये जरूर है कि लोग दौलतमंद को अक्लमंद जरूर समझते हैं। ये बिल्कुल सच्ची। इस दौलतमंद को हम गरीब लोग हम ही समझते नहीं जी, नहीं, जो ये चौधरी साहब कह रहे हैं, जो सरदार जी कह रहे हैं, जो साईं जी कह रहे हैं, जो खान साहब कह रहे हैं, वो ठीक है इसलिए कि वो अमीर आदमी है, इसलिए। लेकिन खुदा के सामने तो सब बराबर है। खुदा तो किसी अना को, खुदा तो किसी मैं को नहीं मानता। वो तो मोहब्बत है, वो तो प्यार है। उसने तो हमें मोहब्बत का, प्यार का सबक दिया हुआ है। अपने पड़ोसी को अपने बराबर प्यार करने का सबक दिया हुआ है। किसी के साथ बुराई हो तो उसको उसके साथ नेकी करने का सबक दिया हुआ है।
कोई प्यासा हो तो उसको प्यास बुझाने का सबक दिया, तो हम फिर क्यों अपने आप को दौलत की वजह से खुदा समझने लगते हैं? क्या बात है? इसीलिए कि हम खुदा को भूल जाते हैं। हम समझते कि जो धन दौलत खुदा ने दी है वो ही सब कुछ है, हम उसी की पूजा करते हैं। और इसी वजह से हम अपनी अना और मैं को नहीं छोड़ते, और जिसकी वजह से दुनिया से प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक खत्म हो रहा है। जरा सोचिए, अंधेरे आपको अंधेरे से बाहर नहीं निकाल सकता, अंधेरा आपको अंधेरे से बाहर नहीं निकाल सकता, सिर्फ रोशनी ही ऐसा कर सकती। बिल्कुल, आप किसी भी अंधेरे में फंस जाते हैं उस जगह पर जहां अंधेरा ही अंधेरा है, और वो अंधेरा मिलेगा जब हम ऊपर जाएंगे, हमारा एहतसाब होगा। तो अगर हमने खुदा के काम को माना, उसके बातों को, उसके हुक्मों पर अमल किए, तो हमें रोशनी मिलेगी, फिरदौस मिलेगा। वो उस अंधेरे से कौन निकाल सकता है? खुदा बाप और खुदा बेटा, क्योंकि वो रोशनी है, वो नूर है, दुनिया का नूर है। तो इसी वजह से अंधेरे से कौन निकाल सकता है? खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा का कलाम। तो सिर्फ रोशनी ही ऐसा कर सकती। ये पाक कलाम रोशनी है, इसके अमल करें तो इसकी रोशनी में चले। अगर हम शैतान के नरगे में हैं, दोनों कश्तियों में पैर रखे हुए हैं, तो हम मुंह के बल जरूर गिरेंगे और अंधेरे में और पताल में गिरेंगे। नफरत आपको नफरत से बाहर नहीं निकाल सकती। अना और मैं, नफरत आपको बाहर नहीं निकाल, सिर्फ मोहब्बत, खुदा मोहब्बत है, सिर्फ मोहब्बत ही आपको नफरत से बाहर निकाल सकती। जैसे अंधेरे से रोशनी बाहर निकाल सकती है, इसी तरह नफरत से आप मोहब्बत आपको बाहर निकाल सकती है। तो अगर हम इन सारी जो कुछ हम दुनिया में कर रहे हैं, अना का, मैं का मसला, इसको खत्म करें, प्यार मोहब्बत का सबक दें, और खुद भी इसमें चले, नमूना देंगे। अगर हम मोहब्बत है तो मोहब्बत का नमूना देंगे तो लोग हमारे पीछे आएंगे। अगर हम शैतानी कुव्वतों का अमल करेंगे तो लोग उसके पीछे आएंगे। और यही सब कुछ हो रहा है, क्योंकि लोग शैतानी और जो शैतान लोग हैं उनके पीछे जानते। दूसरे लफ्जों में, सच के पीछे नहीं जाते, झूठ के पीछे जाते हैं, क्योंकि झूठ बहुत तेजी से बढ़ता है और बहुत सारी बातों में लोग झूठ पर अमल करते हैं। इसी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियां हैं। उसके बाद जीम फे गौरी, बहुत अच्छे उनके 3 शेर हैं, बल्कि उनके मेरे ख्याल 5 शेर मैंने लिए, बहुत अच्छे शायर हैं। मैं मंजर से ऐसे जुदा हो गया हूं कि सपनों का जैसे खुदा हो गया हूं। न मंजर से, न जो भी दुनिया के सामने से मैं जुदा हो गया हूं, इसलिए कि दुनिया ने मुझे अपनी अना और मोहब्बत से पीछे कर दिया, कि सपनों का जैसे कि मैं सिर्फ सपने ही देखता, ख्वाब देखने का ही खुदा हो गया और कुछ नहीं। इसलिए कि दुनिया ने तो मुझे मंजर से हटा दिया, स्क्रीन से हटा दिया, तो फिर मैं सिर्फ सपनों में ही इस दुनिया को देख रहा हूं कि जो कुछ भी है सिर्फ सपने ही हैं। उसके बाद मोहब्बत के तुम सितारे लगे हो, चमक तेरी पर मैं फिदा हो गया। तुम मोहब्बत के सितारे, प्यार के सितारे जो चमकते हैं दुनिया में, मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए, अना और मैं के लिए नहीं, चमक तेरी पर। मैं तेरी इन सच्ची और अच्छी बातों पर, खूबसूरत बातों पर अगर मैं इस तरह ले लूं, तो मैं उस पर फिदा हो गया हूं कि वाकई तुझ में खूबसूरती है, झूठ नहीं है, मुनाफकत नहीं है, मोहब्बत है, प्यार है। तो मैं इस वजह से मोहब्बत के तुम सितारे लगे हो कि तुम वाकई अच्छे लगे हो, कि तुमने मोहब्बत है, और चमक तेरी पर मैं फिदा हो गया हूं। और इन बातों की वजह से मैं तेरे ऊपर फिदा हो गया हूं, कुर्बान हो गया हूं। तेरे शहर के इस अजब
फसले गुल, तेरे शहर के फसले गुल, न आवारा फिरती सदा हो गया हूँ, न तेरे इस शहर के अजब फसले गुल में मैं कैसा आवारा फिरती सदा हो गया हूँ, जो कि आवारा फिर सदा जो आवाजें देने रखती मैं वैसा ही हो गया हूँ। उसके बाद दूसरा 2 शेर और हैं। वतन तू है मेरी पहली मोहब्बत संभाल रखना। बहुत खूबसूरत बात कि जब हमने होश संभाला तो वतन को देखा, ठीक है माँ भी है बाप भी, लेकिन जब चलना फिरना बाहर निकलना शुरू किया तो वो वतन ही था, वो मोहब्बत थी, वो वतन से, अपने गांव से, अपने शहर से, अपने मोहल्ले से मुझे आज भी मोहब्बत है। क्योंकि सबसे पहले जो मोहब्बत मैंने संभाल कर रखी है वो अपना वतन पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद की मोहब्बत रखी है। बहारों से शहरों और गलियों को चिमका रखता है। मैंने अपने शहर के, अपने मुल्क की बहारों और गलियों को जो बहुत खूबसूरत है, मैंने उनको अपने दिल में चमका रखा है। जमाने के अंधेरे से गुजरता जा रहा हूं, फना के दरियाए जाबर में उतरता जा रहा हूं। बिल्कुल जमाने के अंधेरे, वो जमाने के अंधेरे जहां से रोशनी खत्म होगी, जहां से खुदा का नूर जो है वो मानना बंद हो गया, मैं उस अंधेरे में पड़ा हूं, मैं उस अंधेरे में गुजरता जा रहा हूं जहां पर मैं और अना का नशा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। जैसे मैंने अभी एक शेर पढ़ा था कि मैं का नशा तो एक रात में उतर जाता है, मगर मैं का नशा जिंदगी भर नहीं उतरता। और यही मैं अगर ऐसे कहूं कि फना के दरिया में जब फना के दरिया जाबर में उतरता जा रहा हूं, उस जाबर दरिया में जहां पर अना मैं उसमें उतरा जा रहा हूं कि प्यार मोहब्बत इत्तेफाक ऐसी चीज जब वो खत्म हो गई है इस दुनिया से, हमारे दिलों से, हमारे दिमागों से, हम खुदा को भूल चुके हैं। हम सिर्फ इंसानों को पूछते हैं, अमीर और गरीब का फर्क हमने बना रखा है। खुदा ने तो हम सबको बराबर बनाया था, और यही वजह है कि हम फना के दरिया में, हम उस बुराई में जो ज्यादातर झूठ की बुराई जो है उसमें उतरते जा रहे हैं। उसके बाद जिजाम आइजक पंजाबी के बहुत खूबसूरत नज़म लिखी है उन्होंने, मैं समझता हूँ बहुत खूबसूरत नज़मा लिख ता चले हैं। जिसाम साहब तुसी कितने ने चले, खुदा तुहानू बहुत लंबी जिंदगी देवे, बहुत सारे तुम इसी तरह तुसी लिखते रहो खूबसूरत, क्योंकि तुहाडे वर्गे लोकां दी जरूरत है साडी दुनिया, साडी कम्यूनिटी नू, साडे मुल्क नू, जेड़ियां गल्लां तुसी सच्चियां ते अच्छियां लिखते हो। और तुसां अज बहुत सच्चियां ते अच्छियां गल्लां लिखियां, नज़मा लिख धर चले आ, कागज काले कर चले आ, सज्जनों गल्लां कर चले आ। बिल्कुल तुसी इत्थे ही हो, तुहाडियां गल्लां सुनांगे, खुदा करेगा तुहाडियां गल्लां इसे तरह जेड़ी तुसी कागजां नूं लिखिया काले कर दे, ये काले नहीं कर रहे, तुसी अच्छे अमलां दीयां गल्लां कर रहे हो, खूबसूरत ते सच्चियां गल्लां दियां लिख रहे हो इन्हां कागजां ते अमल ते असी लोकी खुदा दे कलाम ते नहीं करदे, ते मैं और तुसी की शामिल, सासी की शामिल। लेकिन तुसी अपनी कोशिश जारी रखो, लिखते रहो, खुदा तुहानू जिंदगी देवे ते असी सुनते रहिए, और मैं अपने शो च तुहानू इसे तरह ही पढ़दा रहां। खुश रहो सजना, याद करोगे, बिल्कुल याद ते तुहानू हुण भी कर, मैं ते कम से कम करना, जदों तुहाडा कलाम रोज वेना ते मैं मेरे ख्याल सब तो ज्यादा तुहानू ही पढ़ना वा, क्योंकि तुहाडे कलाम दियां बहुत खूबसूरत गल्लां हुंदियां ने, सब दी सेवा कर चले हैं। क्या बात है, तुसी बहुत सेवा करनी चले, करन डे हो, और तुसी करदे रहोगे। सज्जनों गल्लां कर चले आ, सज्जनों ते मित्रों ते दोस्ते असी जेड़ियां गल्लां ने वो कर चले, खटियां मिट्टियां करके चले, खटियां मिट्टियां ते हुंदियां ने, ये ते जिंदगी दा एक हिस्सा है,
और खट्टियां मिठियां नाल ही दोस्तियां वधदियां ने। जीवन गिरवी कर चले। बिल्कुल ठीक बात है कि जेड़ी तुसा जो कुछ लिखा वो अपना जीवन अपनी जिंदगी दियां खूबसूरत गल्लां अपने दिल ते दिमाग चों कढ के वो गल्लां तुसा कागजां ते लिख छड़ियां ने। दिल दुखां नाल भर चले। सच्ची गल है कि जेड़ा भी इस दुनिया ते मैं ते अनाथ दे विच वेखदा तो फिर बड़ा दुखी हुंदा कि इंसान ते खुदा ने मुहब्बत सिखाई सी, प्यार सिखाया सी कि एक दूसरे नाल प्यार करो, पड़ोसी नाल प्यार करो। ते दिल जेड़ा दुखां नाल भर चलिया कि असी खुदा दियां गल्लां ते अमल नहीं करदे, असी इंसानी गल्लां ते अमल करने आ, शैतानी गल्लां ते अमल। इसलिए मेरा दिल बहुत भर चलिया। दिल सब दी सेवा कर चले हैं, बिल्कुल भावें दुखी है भावें किस तरह भी है, लेकिन फिर भी असी तुहाडी सेवा तुहाडी खिदमत सब कुछ अच्छियां ते सच्चियां गल्लां लिख के जा रहे हैं। लेकिन मैं फिर दुआ करांगा कि तुसी किसे नहीं जा रहे, इत्थे ही हो ते तुसी मेरे गुआंढ च ही रह रहे हो। ते मसले इत्थे मुकदे नहीं, ये कदे नहीं मुकने। ये जिंदगी है, ये जिंदगी का हिस्सा। जिस तरह साडे मुल्क च ते मसले मुकदे ही नहीं। अज भी किन्ना तमाशा लगा सी असैम्बली दे विच, बदोबदी असी अपने मसले खुद सदर पाकिस्तान जेड़ा सरबराह हुंदा वो बोलन डया ते असी उत्थे नारे मारन डे। ते जिथे ये मसले हुण साडे मुल्क च खास ते उत्थे मसले ते खत्म नहीं हो सकदे। वो गरीबां लई ते नहीं सोचदे, वो ते अपनी जात लई सोचदे ने कि तुसी क्यों इन्हां नूं जेड़े लोग अंदर कीते ने, ये ते बड़े अच्छे लोग सन, इन्हां ते कुछ नहीं कीता, तुसां क्यों अंदर कीता। ते जिथे इंसान झूठ नूं झंडे ते खड़ा करना चाहता है ते फिर उत्थे खुदा दा की है। खुदा जरूर उस इन्हां गल्लां दा सबक देंदा। मसले इत्थे मुकदे नहीं, इत्थे जिंदगी दे मसले नहीं मुकदे, जुल्म तमाशे रुकदे नहीं। बिल्कुल ठीक बाल है, साडे मुल्क च जुल्म तमाशे कदी नहीं मुक सकते। 17-72 साल तो नहीं मुके, ते हुण जेड़ा आने वाला वक्त है वो तो नजर ही आ रहा है कि होर वधन ही दे मुकने ते नहीं गए। चल जाम टुर चलिए उत्थे, चल निजाम टुर चलिए उत्थे, दीवे बलदे धर चले असी उत्थे चलिए जिथे खूबसूरत। और खूबसूरती किथे होनी है, खुदा कोल होनी है। जेड़ी दुनिया च असी इस दुनिया च मेहमान, लेकिन जेड़ी साडी असली दुनिया, जेड़ी खुदा कोल दुनिया, जेड़ी खुदा ने साडे वास्ते फरदौस तैयार की थी, उत्थे चले ते असी इत्थे जेड़े दीवे बाल चले, जेड़े कागज खाली कर चले, जेड़ा इन्ना सारा कलाम देख चले, ये इत्थे तुहाडे कोल मौजूद है। इसलिए असी दीवे बालदे छड़ चले हैं। खुश रहो सजना, याद करोगे। बिल्कुल खुदा तुहानू बरकत देवे ते जिंदा लंबी जिंदगी देवे ते याद ते तुहानू करांगे। सब दी सेवा कर चले हैं। बहुत खूबसूरत दो पंजाबी शेर सैमुअल कामरानी कामनी ने, हाथ तो मत टप्पो। मतलब ये जेड़े दो शेर उन्हें लिखे, मतलब वो कि तुहानू को अगर हाथ फड़ांदा है ते सारी बाह ना फड़ लो, या तुहानू कोई खलोण लई जगह दे देवे ते तुसी फिर उत्थे जम के चौंकड़ी मार के ना बह जाओ कि हुण मैं जो कुछ लैना सी वो लै लिया। जो कुछ किसे जे तुहानू भलाई करदा ते ओहदे कोलों सब कुछ ना खोलो, ओहदे कोल कुछ ना कुछ रहन दो, हद तो वध ना जाओ। इहो ही लिखिया है, किसे कोलों ओहदा सारा ना मंगो, किसे कोलों ओहदा सारा ना मंगो, ओहदा मुनाफे ते एक सारा ना मंगो। तुसी सारा ही तुहानू कोई अगर थोड़ी तुहाडी मदद कर देंदा ते तुसी फिर सोचदे। और एक बिल्कुल 100% सच्ची गल लिखी है कामी साहब ने कि अगर तुसी किसे कोल थोड़ा जिहा तो फिर ओहदी तमन्ना हुंदी है कि मैं सब कुछ। एक दिन एक मैं तहरीर पढ़ रहा था टीना विलियम दे के को बाबा जी सन, ते ओहदे पिछे को बंदा तुरे आवे तो उन्हें कहा की गल है, पूछया, आंदा बाबा जी कुछ भी नहीं। उन्हें उंगली मारी, पहाड़ सोड़ा बढ़ गया, तो उन्हें समझा कि खरे
रज जाएगा, चला जाएगा, वो फिर पिछे ही तुरया जाता। उन्हें क्या होर दवो, उन्हें दूसरा पहाड़ ते उंगली मारी, वो भी सोना बन गया, वो फिर भी ना रज्या, फिर ओदे पिछे तुरया जावे, उन्हें फिर होर दे दिता, फिर भी ना तुम रज्या। तो फिर बाबा जी ने पूछया भी हुण की चाहिए? आंदा बाबा जी आ जिहड़ी उंगली तुसीं इंज करदे हो पहाड़ सोना बन जांदे, भी मैनूं दे दो। ये तो साडा हाल है। असी जे किसे नूं कोई असी किसे नूं बांह फड़ा देने, हथ फड़ा देने, तो फिर वो आंदा तुसीं घरों बाहर हो जाओ, मैं इत्थे रवांगा, तुहाडा कोई हक नहीं। और बिल्कुल सच्ची गल है। और इहो ही काम ही सब कहने कि हदों ना टप्पो, एक हद च रहो। जे कोई तुहाडा भला करदा तो ओदी भलाई जिहड़ी है ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਸਾਰੀ ਰਾਤੀ ਭਾਵੇਂ ਬਿਠਾ ਲਵੋ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭਾਵੇਂ ਬਿਠਾ ਲਵੋ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਰਾ ਨਾ ਮੰਗੋ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ अना ते मैं दे हवाले नाल सी, वो इख्तिजाम पजीर होता है। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, जितनी भी खुदा सबको आपकी हर जरूरत को पूरा करे, आपके बच्चों की हर जरूरत को पूरा करे। किसी भी तरह से कोई भी कमी आपके घरों में, आपके खानदानों में कभी भी ना आने दो। खुदा आपको बरकत दे कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तालीम और तरबियत से नवाज सकें, ताकि हमारी कौम भी एक अच्छी कौम, एक अच्छी नस्ल, एक अच्छी कम्युनिटी हमें देने वाली बने। और हमें कोई हमसे को अच्छा जो खुदा प्रस्त हो, जो दिल में अपने कौम की, मसीही कौम की मोहब्बत रखता, हमें ऐसा कोई लीडर दे दे ताकि हम भी प्यार मोहब्बत में कायम दायम हो सके। तमाम बीमारों के लिए, खास तौर पर सैमसन साहब के लिए जो आदमी में बीमार है बुरी तरह, हॉस्पिटल में, खुदा बाप जी उनको सेहत और तंदुरुस्ती ताकर, और तू अपने बेटे का पाक खून उनके जिस्म पर डाल दे, ताकि जो भी बीमारी है, जो भी मसला उसकी सेहत के साथ है, तो वो शफा पा जाए। तू हर तरह से मेरे इस शो के साथ, जीसस लिंक के साथ हवाले से जो मैं शो करता हूँ, इसमें और बरकत डाल, और फजल डाल, और सच्ची और अच्छी बातें इस शो में शामिल कर सकूं। मेरे दिल और दिमाग में अच्छी और सच्ची बातें आए, ताकि मैं अपने सुनने वालों को, देखने वालों को इन शो की वजह से मैं उनके साथ इसी तरह मौजूद रहूं। खुदा बाप जी अपनी सेहत के लिए, अपनी कानों की जो मसला है, यीशु नाम से इसको ठीक कर दे, ताकि मैं तेरी हमदो सताइश करने के काबिल हूं। ये मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे खुदाम यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। तो आज का शो मेरा खत्म होता है। हमने बिल्कुल सोचना चाहिए प्यार मोहब्बत के हवाले से कि हमें हर हाल में जिंदगी गुजारने के लिए एक दूसरे के साथ, ये जो मैं का मसला, ये जो हम अपने आप को मैं का और अना का मसला बना के एक दूसरे से दूरियां इख्तियार करते जा रहे हैं, तो जरूर इन पर हमें सोचना चाहिए। प्यार मोहब्बत के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। तो खुदा के इस सारे काम काज में हमें उसके साथ शामिल होना चाहिए। खुदा के पाक कलाम को पढ़ना चाहिए। बहुत खूबसूरत जो पाक कलाम है, जो हलामी किताब है, खुदा की बातें, यस्सु की बातें उसमें, उसके नबियों की बातें उसमें, हम उन पर अमल करने वाले हों। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।